Good morning, students, and welcome to the world of physics. Dear students, in our ongoing chapter, that is chapter number 14, Semiconductor Electronics. In this chapter, we have discussed about semiconductors and its energy level, right? In that we study what is the energy level, what is conduction band, what is valence band, and there is a gap between two band. It is known as energy gap or band gap or forbidden gap, whatever you say, right? So we are aware with the energy diagram of silicon and germanium and all metal, right? There are total three parts: valence band, conduction band, and energy gap. Now, as we are aware with all this, let we discuss one more thing. Let we classify our semiconductor once again into two parts. Earlier we classified our semiconductor. It is elemental and compound, right? So once again, let's we do a classification of semiconductor as per the purity. So if we classify our semiconductor, it can be classified into two parts. First, it is intrinsic. It is intrinsic semiconductor. And second, it is extrinsic semiconductor. Now, right, what you mean by intrinsic and extrinsic? So dear students, intrinsic, first let we discuss with this intrinsic semiconductor. Intrinsic means pure. Intrinsic means pure, right? Dear students, whatever element we found in nature, it is not totally pure, right? वो कभी भी pure नहीं होता है. There are some impurities with that. कुछ ना कुछ impurities, कुछ ना कुछ दूसरा एलिमेंट, उसका पार्टिकल कुछ ना कुछ उसके साथ होता ही है. सपोज इफ वी वांट सिलिकॉन, देन वी कैन नॉट गेट सिलिकॉन डायरेक्टली. इंस्टेड ऑफ दैट we get silicon oxide and all that, right? So here the word intrinsic means pure. अगर हमारे पास कुछ सिलिकॉन है, right? ये सिलिकॉन, you can see over here, it is a diamond structure of silicon, right? This is a diamond structure. You can clearly notice, हमको पता है हर एक सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, right? Each silicon has 4 valence electron. वो क्या करते हैं, when they are near to each other, they bond, right? वो एक bond create करता है with the nearest one, and there is an electron combination here, we can say. ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इसको भी देता है, इसको भी देता है. हर एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, and that is how it is a stable now, right? अब ये स्टेबल बन चुका है. दिस इज द प्योर स्ट्रक्चर. यहाँ पर कोई भी इम्प्योरिटी हमको नहीं दिख रही. जितने भी एटम हमने लिए, सपोज वी आर टेकिंग एन एटम ऑफ सिलिकॉन, तो समझ लो सभी के सभी एन के एन एटम, सभी के सभी एटम सिलिकॉन के ही होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा. दिस इज नॉन एज अ इंट्रिंसिक. फर्स्ट, वेरी सिंपल. इंट्रिंसिक मीन्स प्योर. सबके सब जितने भी लिए, सबके सब वो किसके हैं, सिलिकॉन के हैं. एक्सट्रिंसिक, वी कैन गेट अ आइडिया, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी होगी, राइट? ये प्योर नहीं होगा, इम्प्योर होगा. कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी उसके साथ ऐड होगी. दैट वी विल डिस्कस आफ्टर, बट फर्स्ट फोकस ओवर हियर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है? फर्स्ट, इट इज प्योर. सारे के सारे एटम किसके हैं, जिसका हमने लिया है वो. सपोज वी आर टेकिंग सिलिकॉन, देन ऑल एन एटम्स आर ऑफ सिलिकॉन. क्लियर, राइट? डियर स्टूडेंट्स, नाउ फोकस ओवर हियर. आई हैव drawn two energy diagram over here of silicon. First, this is the silicon energy level at T is equal to 0 Kelvin temperature, right? It is at 0 Kelvin temperature, and this is at room temperature. Now you may
have a question, sir, is there any difference between these two? Answer is yes. You can clearly see the difference here. When we see silicon at 0 Kelvin temperature, you can notice there is no any electron in conduction band. There is no any electron in conduction band, and conduction band is totally empty. ये पूरी की पूरी खाली है. जो सारे इलेक्ट्रॉन है, जो भी सारे इलेक्ट्रॉन है, सपोज वी आर टेकिंग एन एटम, सो वी नो वी हैव 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? वैलेंस बैंड में ही है. नो एनी इलेक्ट्रॉन इज इन कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड पूरी खाली है, इट इज एम्प्टी. नाउ हियर यू कैन सी देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड. देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, राइट. जब हम सिलिकॉन को रूम टेम्परेचर पर देखा तो रूम टेम्परेचर, और यू कैन से T इज इक्वल टू T ग्रेटर देन 0 टेम्परेचर, राइट. T ग्रेटर देन 0 केल्विन. 0 से कुछ भी ज्यादा ले लो, you can take a room temperature also. Then we can notice some electrons are here in conduction band, right. This is the difference. अब ये हुआ क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ? Let we discuss. First, this is our common diamond structure of silicon, and here you can see two energy diagram of silicon. First at 0 Kelvin temperature and second greater than 0 Kelvin temperature, right. Now what happened? समझो, फोकस ओवर हियर. हमको पता है सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल ऐसे बना होगा. यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, सभी जगह पे एक एक इलेक्ट्रॉन. सारा स्ट्रक्चर ऐसे बना है, राइट. नाउ सी ऑल दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस सिलिकॉन, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अपनी एक ड्यूटी में है. वो कौन सी ड्यूटी? इट हैज टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी, राइट. सभी को हर एक की वैलेंसी कंप्लीट करनी है. तो इसके पास जो ड्यूटी है वो कौन सी है? वैलेंसी कंप्लीट करने की ड्यूटी है, एंड इट इज नॉन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वी नो दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स ओवर हर हियर दैट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट. अब समझो, नाउ व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, हम 0 केल्विन में से टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाया, व्हेन वी कम टू रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती जा रही है. कैसे? बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ता गया, राइट. देन वी कैन नोटिस दैट एनर्जी कैन बी टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिली है. एंड सपोज ध्यान से, सपोज ये इलेक्ट्रॉन को यहां से एनर्जी मिली, समझ लो इस इलेक्ट्रॉन को यहां एनर्जी मिली है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज नाउ कम आउट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर. ये इलेक्ट्रॉन अब यहां आ चुका है, समझ लो, राइट. इसको एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ चुका है. दिस इलेक्ट्रॉन इज नाउ, इट इज सेड टू बी फ्री इलेक्ट्रॉन. हमको पता है अगर वो अपनी वैलेंसी की ड्यूटी में से निकल गया, कैसे निकल गया? आफ्टर गेटिंग एनर्जी. फर्स्ट थिंग, आफ्टर गेटिंग एनर्जी वो अपनी वैलेंसी की ड्यूटी से निकल गया है. अब वो बन गया है फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन कैन गिव अस इलेक्ट्रिक करंट. समझो, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस इलेक्ट्रिक करंट, राइट. समझो, अब एक चीज ध्यान रखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, राइट. ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो अपनी जगह यहां पे छोड़ गया ना, यहां पे उस इलेक्ट्रॉन की जगह छोड़ गया. समझो, सेम अगर ये सिलिकॉन, राइट, इसके साथ पूरा बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, राइट. सेम विद दिस एंड विद दिस. अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है तो उस इलेक्ट्रॉन की कुछ जगह वहां पे खाली पड़ी, यहां पर उस इलेक्ट्रॉन की जगह खाली बच गई, राइट. देयर इज अ स्पेस. ये इलेक्ट्रॉन अब तक इस चेयर पे बैठा था,
सारी की सारी चेयर फिल थी, समझो सारी की सारी चेयर फिल थी मतलब क्या कि चारों के चारों एंड 4 एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली हियर, वैलेंस बैंड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बैठे थे। अब इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है एनर्जी, इसको मिलती है एनर्जी, एनर्जी लेके अब उसको पता चल गया कि मेरी एनर्जी बढ़ गई है, मेरी एनर्जी अब इंक्रीज हो गई है, देन इट विल ट्राई टू मूव ओवर हियर कंडक्शन बैंड। सिंपल, इट इज हायर एनर्जी लेवल, हमको पता है, तो वो यहां चला जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन यहां गया तो सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉन यहां था उसकी जगह वहां पे बच गई, वहां पे इलेक्ट्रॉन की जगह हमको मिली कि यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझो क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, उसकी जगह यहां रह गई, राइट। दिस स्पेस, द वैकेंट स्पेस, ये इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंट स्पेस है उसको हम बोलते हैं होल, इट इज नॉन एज ए होल। क्लियर? वंस अगेन, जब किसी इलेक्ट्रॉन, सिंपल, जब नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल सिलिकॉन स्ट्रक्चर, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन ड्यूटी टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी फर्स्ट, ऑल आर स्टेबल, ऑल आर स्टेबल। समझ लो ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, इसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट हैज, राइट। इसके अंदर प्लस 14 प्रोटॉन भी है, बाहर 14 इलेक्ट्रॉन है, इनसाइड प्लस 14 प्रोटॉन, आउटसाइड माइनस 14 इलेक्ट्रॉन। कैन वी से दिस इज इलेक्ट्रिकली स्टेबल? आंसर इज यस, क्योंकि जितने प्लस है उतने माइनस है, सिंपल, राइट। समझो 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रिकली स्टेबल है, इट इज इलेक्ट्रिकली स्टेबल एटम। यहां पर भी अभी तक ऐसा ही था, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, पूरा का पूरा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली क्या था, स्टेबल था, राइट। जस्ट फोकस ओवर हियर। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन शायद यहां से निकल गया, समझो अर्लियर इट वॉज इलेक्ट्रिकली स्टेबल एटम, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, मतलब कि माइनस चार्ज वहां से निकल रहा है, राइट, माइनस चार्ज निकल रहा है। तो माइनस चार्ज अगर यहां से निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, बचे कितने, 13, प्रोटॉन कितने थे, 14। अल्टीमेटली वी गेट प्लस चार्ज ऑन दिस एटम, आर यू गेटिंग? अल्टीमेटली वी आर गेटिंग प्लस चार्ज। वाई वी आर गेटिंग प्लस चार्ज? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन जो पहले 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन थे, अब एक निकल गया है, 13 बचे, देन दिस इज आर पॉजिटिव और यू कैन से प्लस चार्ज। अब ये प्लस आयन बन गया है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन जो निकला, दिस इज आवर माइनस, दिस इज माइनस चार्ज एंड दिस एटम इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर? ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकला है तो उसकी जगह वहां पे खाली बची, उसकी जगह खाली बची है, जिसको हमने नाम दे दिया है होल। समझो। नाउ कम टू हियर, इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज नाउ इट इज फ्री, तो यहां पर उसने एक होल बना दिया। होल बना दिया मतलब कि जहां से निकला वहां पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंट स्पेस, राइट, वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज होल, सिंपल, राइट। अब समझो ये होल करेगा क्या, यहीं का यहीं रहेगा। समझो ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब ये होल बचा। अगर शायद पीछे से कोई और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझो पीछे से और इलेक्ट्रॉन आया, दैट इलेक्ट्रॉन विल कम एंड सिट इन दिस चेयर। आर यू गेटिंग? समझ लो ये तो निकल गया, इसने एक होल बना दिया और पीछे से कोई एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि सारी की सारी एनर्जी इसी इलेक्ट्रॉन को मिली है, एनर्जी तो सभी इलेक्ट्रॉन को मिलती है, राइट। थोड़ी बहुत जितनी भी जो इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी लेता है, अगर इसने एनर्जी लेके निकल गया है, इट क्रिएट वन होल, वन वैकेंट स्पेस एंड दैट इज नॉन एज अ होल, राइट। एंड अगर पीछे से कोई एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझो कि ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, व्हाट इट डज नाउ, इट विल कम एंड सिट इन दिस चेयर। ये लड़का यहां से उठ के निकल गया, पीछे वाला आके आगे बैठ गया, राइट। समझो ये इलेक्ट्रॉन आके यहां बैठा है, मतलब कि जो होल था, दैट होल अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन। वंस अगेन फोकस ऑन दिस वर्ड, दिस होल, जो पहले होल बना था उसने किया क्या, दिस होल हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट वन इलेक्ट्रॉन,
राइट, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को, ये होल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब क्या, कब ये अट्रैक्ट करेगा, व्हेन वी कंसीडर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस होल। आर यू गेटिंग? अगर इसको हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, इस होल पर चार्ज नेगेटिव है ऐसा कंसीडर करते हैं, देन इट कैन नॉट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, बट इट अट्रैक्ट इन रियल, इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई वी कंसीडर कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, एंड होल के पास कौन सा चार्ज है, इट इज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? नाउ इट इज कंसीडर, समझ लो ये कंसीडर किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, डोंट बी कंफ्यूज, इट इज कंसीडर, ये कंसीडर किया गया है, ऐसा होता ही है, ऐसा ही होगा, यू कैन नॉट से कंप्लीटली, राइट, बट हियर सिंपल लॉजिक यही है कि इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, राइट। नाउ फर्स्ट वी आर कंसीडरिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन होल। सिंपल, होल होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो निकल गया, एनर्जी लेके, इसको एनर्जी मिली थी, यहां से निकल गया तो उसने अपनी जगह खाली छोड़ दी, वो वैकेंट स्पेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज होल। फर्स्ट थिंग क्लियर, राइट। अब समझो फिर से, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो यहां के बैठ गया, ये होल कंप्लीट हुआ, बट ये इलेक्ट्रॉन जहां से निकला था उसने तो अपनी जगह खाली छोड़ दी, राइट। ये यहां के बैठ गया, बट जहां से निकला उसकी जगह खाली रह गई। तो सिंपल, एक होल अगर जो पहले वैकेंट स्पेस थी वो चेयर किसी ने आके भर दी, ठीक है, बट पीछे जिसने चेयर छोड़ी थी वहां पर भी तो एक चेयर खाली बच गई। क्लियर? उसका मतलब क्या है समझो, इन आर प्योर सेमीकंडक्टर, और यू कैन से इन अवर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जहां पे सारे के सारे एटम सिलिकॉन के हैं, होगा क्या कि जितने नंबर इलेक्ट्रॉन के मिलेंगे उतने ही नंबर होल के मिलेंगे। सिंपल, Ne is equal to NH। आर यू गेटिंग? Ne is equal to NH, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, Ne means now our Ne is number of free electron, right? This is number of free electron and this is number of hole. This is number of free electron and this is number of hole. In our intrinsic semiconductor और pure semiconductor, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, समझो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मिले, एक, होल कितना मिला एक। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, एक होल कंप्लीट हो गया, बट यहां पर तो क्रिएट हुआ एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक होल। समझो कि 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, फॉर एग्जांपल ये भी निकल गया, यहां से ये भी निकल गया, यहां से भी निकला, यहां से ये भी निकला। 5 इलेक्ट्रॉन अगर फ्री बन चुके हैं तो कितने होल उसने क्रिएट किए? आंसर इज 5। जितने निकले उतनी चेयर खाली बच गई। तो आंसर सेम है कि जितने इलेक्ट्रॉन, अगर समझो कि वैलेंस बैंड में से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन गए हैं कंडक्शन बैंड में, इसको मिल गई है एनर्जी, नाउ दिस इज सेड टू बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास ये जो छोड़ के आए हैं वहां जगह पे खाली बची है। यू कैन सी मैंने ऐसे सर्कल किए हैं, दिस इज नोन एज अ होल। क्लियर? कितने होल होंगे? जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। So if you want to answer simple question, if I ask in intrinsic semiconductor, suppose आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर है, मैं बोल रहा हूं you have total 25 free electron, suppose you have total 25 free electron, तो आंसर what is the number of hole? आंसर is same 25, जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतनी जगह बची है। क्लियर? सो दिस इज सिलिकॉन एट 0 केल्विन टेम्परेचर, सारे के सारे यहां पर थे, वैलेंस बैंड में ही थे, कोई कंडक्शन बैंड में नहीं था। अब जब उसको एनर्जी मिली कहां से? टेम्परेचर से। समझो यहाँ के इस केस में आई एम गिविंग द एनर्जी थ्रू द टेम्परेचर, आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, निकल के चले गए कंडक्शन बैंड में। नाउ इट इज सेड टू बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट, बट जहां से निकले वहां जगह खाली रह गई, जिसको मैंने नाम दे दिया hole. This hole have a tendency to attract electrons, so we consider positive charge on hole, right? Positive charge on hole. ये प्रोटॉन नहीं है, once again don't be confused, this is not a proton, समझो once again, it is not proton but it has a tendency
टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, इसके लिए हमने उसको बोला है पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन नहीं है, इट इज नॉट प्रोटॉन. क्लियर? सो डोंट कंफ्यूज डियर स्टूडेंट्स. सो finally we are getting number of electron is equal to number of hole for our intrinsic semiconductor. Clear? Right? And we can call number of electron is equal to number of hole. दोनों के नंबर सेम होंगे, उसीलिए मैंने उसको दे दिया Ni. This is number of intrinsic charge carrier. Intrinsic charge carrier. Number of electron, that is our free electron, right? It is negatively charged carrier. इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा नेगेटिव चार्ज कैरियर है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरियर, होल जो है दैट इज आवर पॉजिटिव चार्ज कैरियर, एंड दिस इज आवर इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर. व्हाई? बिकॉज वी आर स्टडिंग द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. प्योर है, सारे के सारे सिलिकॉन के ही है. अगर जर्मेनियम ले रहा हूं तो जर्मेनियम के है, सेम विद दिस, राइट? बट हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, एंड वी कैन कॉल इट इज नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर. Clear? Intrinsic means pure. So hope you got the idea of this. This is very important theory, dear students, that might be asked in your exam. Explain the concept of hole. Explain the concept of hole. So you have to write from the construction, और कैसे वो create होता है और कैसे वो feel होता है, उसके पास कौन सी tendency है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होल होंगे, ये सारी चीजें 4 points you have to write. They may ask this theory in 2 marks. Once again, they may ask in 2 marks. तो सिंपल स्टार्ट करो कि पहला जो है सारे का सारा न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम. अब जब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, निकल गया, तो वो तो फ्री हो चुका है, बट उसने अपनी जगह खाली छोड़ दी है, जिसको हमने बोल दिया होल. Right? It is a tendency to attract electron. So that is why we are considering positive charge on electron. Clear? Right? So you can see over here, you have to draw this all 3 diagrams if they ask the theory. Compulsory, all 3 diagram is compulsory. यहाँ पे होल बताना है और यहाँ पर ये एनर्जी लेवल बताना है. T is equal to 0 Kelvin and T greater than 0 Kelvin temperature. Right? Now let we discuss one more thing in our theory, that is current. समझो, हमको मिल गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल दोनों सेम होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उतनी जगह खाली बच गई, जिसको हमने होल बोल दिया, बात खत्म. बट अब बात करते हैं कि ऐसा हमारे पास क्रिस्टल है, इफ वी हैव अ क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन लाइक दिस, कौन सा? इंट्रिंसिक. कौन सा? इंट्रिंसिक, कि सारे के सारे सिलिकॉन के ही एटम है. अगर हमारे पास ऐसा सेमीकंडक्टर है तो वो क्या करंट प्रोड्यूस कर सकता है? कर सकता है. तो कितनी कर सकता है? और करंट प्रोड्यूस करने वाला होगा कौन? सिंपल, राइट? किसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगी? नाउ डियर स्टूडेंट्स, इफ आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन कि करंट मिलती किसकी वजह से, यू कैन से ड्यू टू चार्ज. सिंपल. अगर चार्ज की मोशन हो रही है, अगर चार्ज की मोशन हो रही है तो हमको मिलेगी करंट. सो फॉर करंट वी हैव अ मोशन चार्ज, और यू कैन से चार्ज इन मोशन. अब वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता. वंस अगेन फोकस हियर, इफ इट इज नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, डजंट मैटर, डजंट मैटर. If it is in moving condition, if the charge in motion, we can say we can get a current. Simple. समझो, यहां पर करंट मिलेगी? आंसर इज नो. 0 केल्विन पर करंट नहीं मिलती. क्यों? पहली बात, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में है. देयर आर नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड. फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो घूमने जा सके, जो हमको करंट दे सके. बट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, वी कैन नोटिस सम इलेक्ट्रॉन्स आर हियर इन कंडक्शन बैंड. अब समझो कि हमको करंट मिलेगी. क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए. डियर स्टूडेंट्स, नाउ फोकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है. समझो सर, यहां पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, मतलब कि अब हमको करंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी. अभी तक दिस सेमीकंडक्टर वाज वर्किंग एज इंसुलेटर. क्यों? क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था. T is equal to 0 Kelvin temperature. All semiconductors are as insulator. Right? Focus over here. This is very important.
it might be asked in MCQ. At 0 Kelvin temperature, T is equal to 0 Kelvin temperature, semiconductor behaves like insulator, right? But now let we increase the temperature बढ़ाया, हमको कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये इलेक्ट्रॉन अब हमको करंट दे सकते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब हमको करंट दे सकते हैं. नाउ क्वेश्चन इज दिस, क्या यही देंगे, क्या ये ही करंट देंगे? देखते हैं. पहली चीज, इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुए, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुए, समझो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला है, राइट? सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया है, राइट? ये इलेक्ट्रॉन जो निकला, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन सपोज निकला है, ये होल बन गया, इट इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, राइट? ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री बन चुके हैं, ये मैंने यहां दिखाया, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, 3 को मैंने ऊपर बता दिया और यहां पर 3 होल बता दिए. ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री बन चुके हैं वो तो डेफिनेटली हमको करंट देने वाले हैं, सिंपल सी बात है. वी विल गेट अ करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली हमको तो मिलेगी ही मिलेगी. बट एक और चीज यहां आती है, ध्यान से देखो, फोकस. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्री है ऐसा नहीं है, कुछ और भी चीज हमारे पास फ्री बची है. वो कौन सा? दिस होल. समझ रहे हो? ये होल समझो, अभी तक ये होल नहीं भरा है, ये सारे के सारे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 होल वैकेंट है. तो समझो कि इस होल की वजह से भी हमको थोड़ी बहुत करंट मिलेगी. फोकस डियर स्टूडेंट, थोड़ी बहुत करंट मिलेगी. क्यों थोड़ी बहुत मिलेगी? सर, करंट होने के लिए पहली बात है चार्ज की मोशन होनी चाहिए, समझ सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन की तो मोशन होगी, बट सर ये होल, ये तो स्ट्रक्चर में है, समझो ये तो अभी तक स्ट्रक्चर में है, स्ट्रक्चर से नहीं निकले. ये होल जो है वो स्ट्रक्चर से नहीं निकले, निकला कौन है? इलेक्ट्रॉन. ये होल तो अभी तक वैलेंसी में है ना, उसके साथ ही है, स्ट्रक्चर के साथ ही है. तो वो वहां पे कौन सी मोशन होने वाली है? वहां पे मोशन होगी. डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ मोशन ऑफ होल ऑल्सो. हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, हमको लगता है कि जैसे मोशन हो रही है. नाउ समझो कैसे होता है. सपोज दिस इज सिलिकॉन स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ही, फ्री इलेक्ट्रॉन से करंट मिलेगी, बात खत्म. अब समझो दिस इज सिलिकॉन स्ट्रक्चर, यहां पर मैं सिलिकॉन के एटम बता रहा हूं, राइट? सभी के एटम यहां पर है, फोकस, राइट? ऐसा स्ट्रक्चर है. अब समझो आई एम गिविंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस, आई एम अप्लाइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवर हियर. इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दे दी है इस सिलिकॉन स्ट्रक्चर को, राइट? समझो हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, एक सिलिकॉन था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था, एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है. कैन वी गेट दिस इज आवर पॉजिटिव. यहाँ पर एक होल बना है, यस और नो? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ पर क्या बन गया? होल बन गया. ओके, नाउ व्हेन वी अप्लाई अ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस क्रिस्टल, समझो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, समझो क्या हो रहा है? There will be repulsion between these two. पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में, समझो ये होल बना है, होल पर हमने कौन सा चार्ज कंसीडर किया? पॉजिटिव चार्ज. तो अगर ये पॉजिटिव यहाँ पर है तो उनके बीच में रिपल्सन होने वाला है, और इस पॉजिटिव का अट्रैक्शन होगा किसके साथ? इस नेगेटिव के साथ. सिंपली ये नेगेटिव चार्ज है, उसको अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा. तो समझो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ये होल बन गया, पीछे से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझो एक इलेक्ट्रॉन पीछे से. सर इलेक्ट्रॉन इस साइड क्यों आएगा? तो सिंपल बात है, ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है एंड इट विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज. आर यू गेटिंग? समझो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज. समझो मैंने ये पॉजिटिव चार्ज ले ली है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, समझो, राइट? ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है, इट विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस. तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आने का ट्राई करेगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, समझो यहां तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा, उसके पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी कि डायरेक्ट पहुंच जाए, उसके पास इतनी एनर्जी थी कि यहां गया और आगे देखा, अच्छा जगह खाली है, तो क्या करता हूं? यहां जाके बैठ जाता हूं. होल जो था वो होल में जाके ये इलेक्ट्रॉन बैठ गया, राइट? हमने देखा है होल की एक टेंडेंसी होती है, वो कौन सी? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की. तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकला, वो यहां पर होल जो खाली था उसमें जाके बैठ गया. तो यहां वाला जो होल था वो अब भर चुका है जो पहले था, बट जहां से निकला
वहां पे तो होल क्रिएट हो गया, समझो। आर यू गेटिंग? जहां से निकला वहां पे होल क्रिएट हो गया। सेम, और ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अब अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहां जाएगा? आगे वाले होल में जाके बैठ जाएगा, राइट। फिर से अगर ये इलेक्ट्रॉन आगे वाले होल में जाके बैठ गया तो मतलब यहां पर जो होल था वो अब भर चुका है, अब उस वैकेंट स्पेस नहीं है। बट जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे तो होल बन गया, राइट, समझो। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां होल बन गया। सेम विद दिस, अगेन ये इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो समझो कि यहां से निकले वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाके बैठ गया वंस अगेन, तो ये होल कंप्लीट हो गया, और जहां से निकला वहां पे जगह छोड़ दी। सेम विद दिस, समझ रहे हो धीरे धीरे क्या हो रहा है? देखो ये होल भर चुका है, यहां पे बन गया, राइट। क्लियरली यू कैन सी, जो होल था, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था, वो धीरे 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 माइनस की ओर मूव कर रहा है। देखो पहले यहां था, फिर यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया। इट इज ट्राइंग टू मूविंग टूवर्ड्स अ नेगेटिव। आर यू गेटिंग? धीरे धीरे वो पॉजिटिव चार्ज, पहले ये था, फिर यहां आ गया, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, समझो ये चार्ज धीरे धीरे इस साइड आ रहा है। होल अपने आप से निकल के मोशन नहीं कर रहा है, निकलने वाला तो इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा और मोशन करेगा तो करंट मिलेगी। बट यहां पर अल्टीमेटली वी कैन सी होल की भी साथों साथ मोशन हो रही है टूवर्ड्स नेगेटिव। आर यू गेटिंग? राइट, टूवर्ड्स नेगेटिव उसकी भी मोशन धीरे धीरे हो रही है। सो इफ वी कंसिडर, हम जो यहां पर मोशन होनी हो रही, हमको दिख रहा है कि जैसी मोशन हो रही है, we are considering there is a motion of hole. तो अगर होल की, I mean पॉजिटिव चार्ज की मोशन है, then we can get a current through hole also. Are you getting? We can get a current through hole also. इलेक्ट्रॉन से होते मिलेगा ही मिलेगा, बट थोड़ा बहुत करंट हमको मिलने वाला है होल से भी। So total current, it is current due to electron plus current due to hole. That is how we get a whole current. Complete current हम मिलेगा कितना? IE plus IH. Clear? IE plus IH. IE means it is a current due to electron. IH it is current due to hole. Hole की भी हमको दिख रहा है कि मोशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन की तो होती ही होती है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन की करंट और होल की वजह से मिलने वाला करंट, the addition of both, it is gives us total current we can get in our intrinsic semiconductor. Clear? हमको पूरा करंट मिल रहा है किसकी वजह से? due to this charge carrier and due to this charge carrier. This is electron, charge carrier is electron, here the charge carrier is hole, right? So electron की वजह से भी मिलता है, hole की वजह से भी मिलता है। Clear? So hope all of you are clear with this concept. Current we can get through this. Hole से भी हमको करंट मिलता है। Now for your information, ये जो करंट मिलता है exactly थोड़ा बहुत मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता, कम होता है, राइट। उतना करंट हमको नहीं मिलता, बट कुछ तो है, कुछ तो है, जितना भी है, जितना भी मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है। that is why we have to consider this in our current. Clear? So dear student, this is all about intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor, पहली बात तो कि प्योर होगा, कोई इम्प्योरिटी उसके अंदर नहीं होगी, पूरे के पूरे जो सिलिकॉन ऐसे डायमंड स्ट्रक्चर में है। सिंपल है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है टेम्परेचर से या इलेक्ट्रिक फील्ड से या हीट देने से, कुछ भी वजह से, राइट, तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा। अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी स्पेस वैकेंट बच गई, द वैकेंट स्पेस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इट इज नोन एज अ होल। वो होल क्या करता है? इट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, सो वी कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट, राइट। वी कंसिडर पॉजिटिव चार्ज, जो वैकेंट बची है वो, राइट। अब होल की वजह से भी हमको कुछ करंट मिलती है एंड इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट मिलती है। वन मोर थिंग, it is very important for our intrinsic semiconductor, we can get number of electron is equal to number of hole, right? So ऐसी हमको करंट मिलेगी। हमने देखा कि होल की वजह से मिलने वाली करंट अभी के लिए बहुत कम होती है और यहाँ पर थोड़ी है, राइट, बट जो भी करंट मिलती है दोनों के एडिशन की वजह से मिलती है। क्लियर विद दिस? नाउ लास्ट पॉइंट समझो कि
हमको अभी भी इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? पहली चीज़ कि हमारे पास कंडक्टिविटी कम है, फर्स्ट पॉइंट। इसके कुछ ड्रॉबैक समझो, ड्रॉबैक नहीं कह सकते, जो इजी प्रॉब्लम है, राइट, वो क्या है? कंडक्टिविटी, लेस कंडक्टिविटी हमारे पास है। लेस कंडक्टिविटी, क्यों कंडक्टिविटी लेस है? तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है, राइट, कंडक्टिविटी हमारी लेस है। दूसरी बात कि ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी मतलब कि ज्यादातर करंट हमको इलेक्ट्रॉन की वजह से ही मिलता है, इसकी वजह से कम मिलता है, राइट, इसकी वजह से कम मिलता है, इसकी वजह से ज्यादातर करंट मिलता है, और हमारे पास वो कम है। और ये जाएंगे कैसे? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो मतलब कि हमारी कंडक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी टोटली बेस्ड ऑन टेम्परेचर है, बेस्ड ऑन टेम्परेचर है। समझो, टेम्परेचर बढ़ा तब जाके हमको कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, समझ रहे हो? अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, टेम्परेचर अगर सेम रखते हो या डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेंगे ही नहीं। आर यू गेटिंग? सो हमारा जो कंडक्शन है, कंडक्टिविटी है, इट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तब जाके यहाँ जाएगा और हमको कुछ करंट देगा। सो कंडक्टिविटी हमको लेस मिलेंगी। और द थर्ड मोस्ट थिंग, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। सिंपल, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहे उतने ही होल बन रहे। अच्छा, होल यहाँ पर हो सकते हैं? आंसर इज नो, यहाँ पर होल नहीं हो सकते। होल कहाँ से होंगे? जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे, राइट। सो समझो कि कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी में हमको बहुत फर्क लग रहा है, जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही। तो क्या करना है हमको? अगर कंडक्टिविटी चाहिए, इफ वी वांट मोर कंडक्टिविटी, देन वी हैव टू इंप्रूव दिस थिंग, वी हैव टू इम्प्रूव दिस थिंग। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ होल है। अगर ये चेंज आ जाए, मतलब कि या तो इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ जाए या तो होल के नंबर बढ़ जाए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, दोनों में से किसी एक को बढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है वो बढ़ना स्टार्ट करेगा। इफ इट विल इंक्रीज, देन वी कैन गेट अ मोर करंट, मोर कंडक्टिविटी। और वो हम कैसे करते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, अप टू नाउ होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर with the intrinsic semiconductor. This is the most important theory, right? Concept of hole, very important theory. All of diagrams should be drawn in your exam paper sheet, right? So be clear with this theory, clear each and every concept of this theory, and practice one separate note and prepare one note for this concept, right? So hope all of you are clear with the concept and do your best to practice. All the best and thank you very much.